Good morning, everyone. Welcome to the class. There was some technical issue in earlier link, so I have shared the another one. So do let me know if I am audible. Do let me know if I am audible and the slide is visible to each one of you. So we are doing the PYQ for December 2023. We have already done 4 parts. This is your part number 5. So without any delay, already we have late. We are late. So we are having a second class as well. So without any delay, we would be starting the session. Just let me know in the comment section if I am audible and the slide is visible. Right? So previous session we did few questions. Vibha, good morning and welcome to the class. Today's question, for the first question for the day is this is trade union, the question from the trade union, and always there is one question 100% asked from the trade union. So the question is, which of the following trade union organizations were in existence by the end of 1933? And this is your PYQ asked twice earlier, right? This is your PYQ. By 1933, which of the following trade union were into the existence? All India Trade Union Congress, the Red Trade Union Congress, National Trade Union Federation, Indian Trade Union Federation. So, we have a trade history, trade union evolution, which we would be studying in our detailed class. However, All India Trade Union Congress was the first central organization, Central Trade Union Congress or Central Trade Union Organization, which had 66 trade union affiliated, 67 trade union affiliated to it. But this All India Trade Union Congress has faced splits over the period of the time, because of which there has been number of the time new organization came into the existence. So the question is, till the end of 1933, which of the following were into the existence? So without waiting for your comments in the comment section, and then I would be explaining this. Anyone who knows the answer, do write in the comment section. Yeah. So All India Trade Union Congress, this was the 1920, the direct outcome of ILO, International Labour Organization, which was formed in 1919. The direct outcome of the formation of ILO was 1920. The reason is that at ILO, the representation of the employees or trade union was required, and for that All India Trade Union Congress was formed. Now, this All India Trade Union Congress has faced the splits. The first split was 1929 and another next split was 1930. ठीक है, कहीं पे 31 भी लिखा है. So 1929, 31 or rather. So Red Trade Union Congress and all other National Trade Union Federation, these are basically the splits which happened from All India Trade Union Congress. I am not going to tell you the year which year the splits were happening or which happened. You have to answer. I have almost given all the explanation. So you have to answer which of the following were into the existence till 1933. Well, the answer for this is option number 3. A, B and C. All India Trade Union Congress, Red Trade Union Congress, National Trade Union Federation. These were into the existence by the end of 1933, and Indian Trade Union Federation, this actually got dissolved. Okay? This got, you can say, clubbed, or this got merged. So that's why by 1933, this three had their existence. So it was All India Trade Union Congress, which was 1920, Red Trade Union Congress, which was, write in the comment section. A nahi hai, it's option number 3. Okay? Write in the comment section what are the years. These years are very very important. 1920 was this formation, uske baad split hua. 1929 was the first place, 1930 was the second. Yes. अब ये splits ही हैं, आप splits बताएंगे. ठीक है? Write in comment section. Moving to the next question. Who authored the book The Nature of Managerial Work?
सो ये बुक किसने लिखी है? वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑथर एंड द बुक इज ऑल्सो आस्क्ड एवरी ईयर. सो द बुक इज रिटन बाय Henry Mintzberg. Henry Mintzberg is known for different managerial, giving the managerial roles. ठीक है, Henry Mintzberg said that basically there are different managerial or different roles which are to be performed by the managers, and the nature of the managerial work. He has given the detailed description of managerial roles in his book, The Nature of Managerial Work. So the answer for this is option number 2, Henry Mintzberg. Moving to the next question, important. The term wages and wages under the Contract Labour and Regulation Abolition Act of 1970 has the same meaning assigned to it under which of the following legislation? So again, we have few of the legislation whose definitions are given the reference. कुछ ऐसे हमारे laws हैं जिसके अंदर में जैसे Contract Labour Act है. Contract Labour Act के अंदर में definition जब वेजेस की बात आती है तो इट इज रिटन एज डिफाइंड अंडर, राइट. सो एज डिफाइंड, इंटरस्टेट माइग्रेंट में भी यही है, ठीक है. सो इंटरस्टेट और योर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर में जब वेजेस को डिफाइन किया जाता है, विच एक्ट वेज डेफिनेशन इज टेकन इनटू द रेफरेंस. सो बेसिकली द आंसर फॉर दिस इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, जो स्टूडेंट्स ने ये स्टडी किया है, दे नो इट्स पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जिस तरीके से वेज को डिफाइन किया है, इंक्लूडेड एंड डज नॉट इंक्लूडेड पार्ट में, सेम डेफिनेशन को कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के लिए यूज किया जाएगा, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर्स prescribed under the Industrial Dispute Act of 1947 for the protected workmen? Right. So answer, though you all, the new students also, those who have been following me have already done this, कि protected workmen मतलब क्या, right? तो minimum और maximum बताना है. Section number 33 clause 3 under the Industrial Dispute Act and सेक्शन और रादर रूल नंबर सेक्शन 61 रूल नंबर, रूल बोल लो या सेक्शन बोल लो, उसके अंदर में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेंट्रल रूल्स के अंदर में सेक्शन 61 एंड एक्ट के सेक्शन 33 क्लॉज 3 के अंदर में प्रोटेक्टेड वर्कमैन को डिफाइन किया गया है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्टेड वर्कमैन? सो ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स, देयर आर द ट्रेड यूनियन. The trade union's executive body क्या होती है? The body which is responsible for complete controlling and affairs of trade union. This executive body members are called as office bearers. Office bearer. Every registered trade union, हर एक जो registered trade union होती है, that whatever industry, whichever industry with which it is registered, उस इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर को एक लिस्ट देती है मेंबर ऑफ ऑफिस बियरर्स या मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, ऑफिस बियरर्स की या मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी की, ट्रेड यूनियन की. फ्रॉम दिस गिवन लिस्ट एम्प्लॉयर ना डिक्लेयर करता है 1% एज एन प्रोटेक्टेड वर्कमैन, जो कि मिनिमम 5 है एंड मैक्सिमम 100. यानी आपके लिए आपकी ट्रेड यूनियन से मिनिमम कितने मेंबर्स को आप प्रोटेक्टेड वर्कमैन डिक्लेयर करवा सकते हो? 1%, दैट इज योर मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 100. यानी अगर 1000 है, 1000 का अगर मैं 1% देखूंगी तो कितना होगा? या व्हाट वुड बी द 1% ऑफ द 1000? 10, राइट. तो 10 हो सकते हैं. अगर जैसे 100 है तो 100 का मिनिमम 1% इज 1, तो 1 होगा क्या? नहीं, मिनिमम 5 तो होंगे. और इसमें इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है? 100 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं. मतलब आपका 1% इज इक्वल टू 100 हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है. फाइन. सो दैट इज द प्रोटेक्टेड वर्कमैन, मिनिमम 5, मैक्सिमम 100. अब प्रोटेक्टेड वर्कमैन को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है
during the strikes, lockout proceedings going on, they cannot be terminated, they cannot, their working conditions cannot be changed. उनसे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट सेंट्रल लेवल पे रिजॉल्व किया जाता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन. ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन पूछते हैं. पहली चीज, बेसिक चीज अबाउट असर्शन रीजन इज कि ये दो क्या है, ये दो स्टेटमेंट्स हैं. दो स्टेटमेंट्स दिए हैं जो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने हैं करेक्ट है कि नहीं है. अगर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं तब आगे जाओगे आप ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये जो रीजन दिया है ये असर्शन यानी सी कोई भी तरीके का एक स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट या स्टेटमेंट को हम असर्शन कहते हैं कि बोलना, वो स्टेटमेंट को सामने रखना. ठीक है, सो असर्शन इज देयर, रीजन इज देयर. आप दोनों को पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या नहीं है. लेबर लॉ या ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछा हुआ, अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, आपको कंसेप्ट पता है, तो लेबर लॉज में आने वाले असर्शन और रीजन काफी इजी होते हैं. अगर आपने कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस कंटेंट को पढ़ा हुआ है, किस बारे में है, आपको इस बारे में अगर पता है कि ये पर्टिकुलर असर्शन किसके बारे में, तो इजीली आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि असर्शन एंड रीजन करेक्ट है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि रीजन इस असर्शन के लिए करेक्ट रीजन है कि नहीं है, क्या रीजन इसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सी वेरी कॉमन वे जो यूजुअली लोग यूज करते हैं कि असर्शन के बाद में एंड यूज करते हैं. तो एंड इज लाइक, आप जैसे ये है, द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द जनरल लेवल ऑफ द वेजेस आर द वैल्यू ऑफ मार्जिनल नेट प्रोडक्ट ऑफ लेबर, degree of competition in the market for the products of the industry and relative bargaining of workers and the employer. ये बहुत सिंपल है. जिसने लेबर मार्केट में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर पढ़ा होगा, उसके लिए ये आंसर इजी होगा, ये क्वेश्चन इजी रहा होगा. क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन कह रहा है कि जनरल लेवल ऑफ वेजेस जो होते हैं मार्केट के अंदर में, जो वेजेस जो एक लेबर को दिए जाएंगे या वर्कर्स को दिए जाएंगे, इनके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं. पहला, मार्जिनल नेट प्रोडक्ट ऑफ लेबर. यस, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है. सो दो हैं, एक और ए और बी. इसकी प्रोडक्टिविटी हाई है, इसकी प्रोडक्टिविटी लो है. ऑब्वियसली ए जिसकी प्रोडक्टिविटी हाई है उसको हायर वेजेस मिलने चाहिए. दूसरा, डिग्री ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री. डिग्री ऑफ कंपटीशन यानी अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में उसके लिए कोई कंपटीशन ही नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उसकी डिमांड होगी. अपने आप में वो यूनिक है, यूजफुल प्रोडक्ट है और उसका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उसकी तो डिमांड होगी. अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड है, उस प्रोडक्ट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए लेबर चाहिए होगी, और लेबर ज्यादा चाहिए होगी तो ज्यादा वेजेस चाहिए होंगे. तो यस, इट इज डिग्री ऑफ कंपटीशन. एंड रिलेटिव बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर. अब एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में जो वेजेस डिसाइड होते हैं, ये इनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस से भी होता है. तो किसकी कितनी बार्गेनिंग स्ट्रेंथ है ये डिसाइड करती है कि वेज लेवल क्या होगा. क्लियर. दूसरा, रीजन कहता है मोस्ट इकोनॉमिस्ट नाउ कन्फाइन देयर एक्सप्लेनेशन टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द वेजेस इन मॉडर्न फ्री labor market to be a combination of marginal productivity theory and bargaining theory. अब मैंने जो आपको ये प्रोडक्टिविटी एक्सप्लेन किया ना, कि प्रोडक्टिविटी कि एम्प्लॉय की, किसी भी एक लेबर की जब तक प्रोडक्टिविटी रहेगी तब तक उसको वेजेस मिलेंगे. जैसे ही उसकी प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयर के खर्चे जितनी हो जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी यानी वो प्रोडक्टिव नहीं है, अब उसको वेजेस नहीं मिलेंगे. So the basic answer for this is yes, in today's modern free labor market marginal productivity यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक एम्प्लॉय की कितनी है या लेबर की कितनी है, ये वेज लेवल डिसाइड करता है. प्लस बार्गेनिंग थ्योरी यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो तय होता है, जो वेजेस तय होते हैं, वो बार्गेनिंग से तय होते हैं. सो ऑटोमेटिकली दोनों ही स्टेटमेंट, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. बट द थिंग इज, यहां पे पूछ रहे हैं जनरल लेवल ऑफ द वेजेस
और यहां पे बोल रहे हैं इकोनॉमिस्ट, ठीक है। प्रोडक्टिविटी भी सही है, बार्गेनिंग थ्योरी भी सही है, ये प्रोडक्टिविटी डिफाइन करता है, वेजेस का लेवल डिफाइन करता है, बार्गेनिंग थ्योरी भी वेजेस की लेवल डिफाइन करती है, लेकिन इसके लिए डिटर्मिनेंट को रीजन देने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, सी ये दिस आर डिफरेंट थिंग। ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, ये मॉडर्न थ्योरी कह रही है, और ये केवल और केवल कह रहा है कि वेजेस है क्या, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो मेरे व्हाट आई यूज टू डू इज, या फिर मेरे हिसाब से ऐसे टाइम पे ये एंड लगा के करोगे ना तो आपको ये आंसर मिलेगा, ऑप्शन 1, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन। नहीं, यूजुअली एंड के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम एंड लगा के देखते हैं तो हमको आंसर सही मिलता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। अब मैं व्हाट आई से इज कि ऐसे टाइम पे आप दैट्स वाई लगा के देखेंगे, दैट्स वाई किसके आगे, रीजन के आगे, दैट्स वाई। सो ये मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, the most economists now confine their explanation for of the determination of the wages in modern free labor market to a combination of marginal productivity theory and bargaining theory. That's why the main determinant. No, this is not actually determining, right? ये no है, so this is not the correct explanation. ठीक है, let's move to the next question. Which of the following factor influence the multinational corporation to recruit the host country nationals? Now try to answer this question. So when we talk about multinational companies, or when we talk about international companies, or basically the companies which are situated abroad, there can be 3 types of the companies. National companies में 3 तरह के हो सकते हैं, your parent country, ठीक है, then your host country, parent country, host country and your third country. तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि which factor influence multinational cooperation to recruit host country nationals. So पहले तो इसको समझेंगे कि host country nationals होते क्या हैं, right? Try to answer in the comment section to this. Meanwhile I will give you the explanation. So हमारे जो countries होती हैं, बेसिस ऑफ द सब्सिडीज, सब्सिडीज कहाँ लोकेटेड हैं उस बेसिस के ऊपर में डिफाइन की जा सकती हैं ऐसे, पेरेंट कंट्री नेशनल, पेरेंट कंट्री, ठीक है, या फिर हम उसे कहेंगे होम कंट्री। दूसरा होता है, यहां पे इसको होम कंट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसकी जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, हेडक्वार्टर्स जो है जिस कंट्री में होगा, हेडक्वार्टर जिस कंट्री में होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे होम कंट्री। देन होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री का मतलब है जहां पे सब्सिडरी लोकेटेड है, उस कंपनी की सब्सिडरी या ब्रांच लोकेटेड है जिस कंट्री में, उसे होस्ट कंट्री कहते हैं। थर्ड कंट्री, थर्ड कंट्री का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जहां ना ही हेडक्वार्टर है ना ही सब्सिडरी है, बट यहां से रिसोर्सेस आते हैं, रिसोर्सेस ह्यूमन रिसोर्सेस हो सकते हैं, या आपका फाइनेंस हो सकता है, या आपका कोई और मॉनेटरी रिसोर्स हो सकता है, ये सारे रिसोर्सेस थर्ड कंट्री से आते हैं। अब जो लोग या जो एम्प्लॉइज होम कंट्री को बिलोंग करते हैं उन्हें हम कहते हैं पेरेंट कंट्री नेशनल्स, यानी इस जहां हेडक्वार्टर लोकेटेड है वो उसी कंट्री। सो इंडिया में पतंजलि का अगर हेडक्वार्टर है तो इंडियन एम्प्लॉइज को हम क्या कहेंगे, पेरेंट कंट्री नेशनल। अमेरिका में अगर सब्सिडरी है तो अमेरिका को हम कहेंगे होस्ट कंट्री, और अमेरिकन एम्प्लॉइज या अमेरिकन के लोगों को हम कहेंगे होस्ट कंट्री नेशनल। और अगर हम अमेरिका या इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया से फाइनेंस ले रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स ला रहे हैं, या कुछ और लेकर आ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को हम कहेंगे थर्ड कंट्री। यहां ना ही सब्सिडरी है ना ही हेडक्वार्टर है, बट यहां से रिसोर्सेस आते हैं, ठीक है। सो अब जब एक स्टाफिंग होती है, जैसे लेट्स से होस्ट कंट्री यानी अमेरिका में ओपनिंग है,
अब इस मैनेजरल ओपनिंग को फिल करने के लिए 3 तरीके होते हैं। एक होता है एथनोसेंट्रिक अप्रोच, जो होम कंट्री नेशनल को रिलेट करता है। दूसरा होता है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, तीसरा होता है जियोसेंट्रिक अप्रोच और चौथा होता है रीजियो। तो एथनोसेंट्रिक अप्रोच किसे कहते हैं कि जब कोई ओपनिंग सब्सिडरी में है वहां पे होम कंट्री नेशनल के एम्प्लॉइज को ही भेजा जाए, वही उन्हीं को अपॉइंट किया जाए। सब्सिडरी यानी अमेरिका में ओपनिंग है लेकिन इंडिया से, इंडिया यानी हेडक्वार्टर से एम्प्लॉइज जाके उस पोजीशन को फिल करेंगे। इसे एथनोसेंट्रिक अप्रोच कहते हैं, या कहते हैं कि होम कंट्री नेशनल्स को लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जाते हैं या होम एथनोसेंट्रिक अप्रोच क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन या टॉप मैनेजमेंट यहाँ बिलीव करती है कि मेरे कंट्री, मेरी इंडिया है, कंट्री है, पतंजलि जो है इंडिया की कंपनी है, और यहाँ का कल्चर केवल इंडियन समझ सकते हैं, यहाँ के लोग नहीं समझ सकते। इसलिए वो अपने कल्चर को कैरी करने के लिए वहां सब्सिडरी में भेजते हैं। होस्ट कंट्री नेशनल के एम्प्लॉइज, अब जैसे अगेन सब्सिडरी में ही ओपनिंग है, तो टॉप मैनेजमेंट क्या करेगी, इंडिया से लोगों को बुलाने के बजाय अमेरिका जहां सब्सिडरी लोकेटेड है वहीं के लोकल लोगों को क्या करेगी, हायर करेगी। अब क्यों करते हैं? क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि लोकल मार्केट को अगर कवर करना है तो लोकल नॉलेज होना जरूरी है, और जहां सब्सिडरी लोकेटेड है वहीं के लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो लोकल मार्केट की नॉलेज होना जरूरी है। थर्ड कंट्री नेशनल ग्लोबल अप्रोच पे बेस्ड है, दैट इज बेस्ट पर्सन वर्किंग एट द बेस्ट प्लेस। इस अप्रोच में, जिसे हम जियोसेंट्रिक अप्रोच कहते हैं, मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट बिलीव करता है दैट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि मैं होम कंट्री से लूं या होस्ट कंट्री से, मुझे बेस्ट मैन चाहिए, बेस्ट टैलेंट चाहिए मेरे पोजीशन को फिल करने के लिए। वो हो गया जियोसेंट्रिक। सो अब क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टू रिक्रूट होस्ट कंट्री? They are familiar with the culture, to maintain and facilitate the organizational coordination and control, to develop good public relation, the company's conviction that it must maintain a foreign image in the host country. Yes, try to answer in the comment section. क्या है, क्यों होस्ट कंट्री से ही रिक्रूट किए जाते हैं? वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग। अब थोड़ा सा लॉजिक लगा के बताएंगे कि क्या हो सकता है इसका आंसर। वेल, या so the answer is A and C. They are familiar with the culture. ठीक है, which of the following are culture, कौन सा, लोकल या होस्ट कल्चर से वो फेमिलियर होते हैं। ठीक है, दूसरा टू डेवलप गुड पब्लिक रिलेशन, वहां के लोकल लोगों से अच्छा पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना। कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, ये होम कंट्रीज के लोग होते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल अच्छा होता है। Company's conviction that it must maintain a foreign image in the host no, that is not the reason के host foreign image यानी उस कंपनी के उस लोकेशन की इमेज के लिए नहीं। ठीक है, so the answer was option number 3. Moving to next, 2 statements are given. We have different types of trade union, different structural trade union, I would say different structure of trade unions. ठीक है, बेसिस ऑफ मेंबरशिप, और या बेसिस मेंबरशिप या ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पे जो दिया है मैं उसी बेसिस पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लोज्ड शॉप, ओपन शॉप, रादर यूनियन शॉप, ठीक है, देन यू हैव मेंटेनेंस शॉप एंड एजेंसी शॉप। ये 3-4 तरीके के क्या है, ट्रेड यूनियन के स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये किसके अंदर ये जो यूनियन से किस बेसिस पे बनते हैं, मेंबरशिप के बेसिस पे, कि ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप कैसे एक्वायर करनी है उसके बेसिस पे। याद रखेंगे, दिस ऑल आर ऑल्सो कॉल्ड एज द यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स। क्यों कहते हैं इनको यूनियन सिक्योरिटी मेजर? See, suppose let's say trade union is there and employer is there. ठीक है, अब क्या हुआ, ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट हुआ, तो ट्रेड यूनियन चली गई स्ट्राइक पे।
अब धीरे धीरे बहुत दिन स्ट्राइक हो गई, कुछ मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के, वो कह रहे हैं ऐसे तो काम नहीं चलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, तो ये मेंबर ट्रेड यूनियन के वापस एम्प्लॉयर के पास जाके काम करने लगे। तो इनकी जो स्ट्राइक का मेन मकसद था वो डिसॉल्व हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ, एक एक करके सब चले जाएंगे। ऐसे केस में यूनियंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसे हम यूनियन सिक्योरिटी क्लॉजेस या एग्रीमेंट्स कहते हैं। इसके अंदर में पहला आता है क्लोज शॉप। क्लोज शॉप कहता है दैट एम्प्लॉयर विल बी, अगर एम्प्लॉयर के पास कोई भी ओपनिंग आती है, ही विल बी हायरिंग और ही विल बी एम्प्लॉइंग ओनली दोज एम्प्लॉइज हु आर मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। सो एक किसी इंडस्ट्री के अंदर में नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन एफिलिएटेड हो सकती है या ट्रेड यूनियन हो सकती है, या इस इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉइज हैं ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड यूनियन से एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो क्लोज शॉप कहता है कि लेट्स से ट्रेड यूनियन का, ट्रेड यूनियन 1 का इंडस्ट्री से एग्रीमेंट है दैट you will be hiring only those employees those who are member of trade union। आपके पास में अगर कोई ओपनिंग आती है ना, आप उसी पर्सन को लोगे जिसके पास में मेंबरशिप है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेड यूनियन का जो एम्प्लॉय वो इसी में काम, इस ट्रेड यूनियन के मेंबर ऐसे भी हो सकते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग आपके पास में आके जॉब मांग रहे हैं, दोगे, लेकिन आप मेक श्योर करोगे दैट दे आर द मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। तो क्लोज शॉप कहता है कि एम्प्लॉयर इज सपोज टू हायर ओनली दोज पीपल दोज हु आर मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉइज हैव टू रिटेन दैट मेंबरशिप इन ऑर्डर टू रिटेन द एम्प्लॉयमेंट। तो अगर कोई भी मेंबरशिप, कोई भी एम्प्लॉय कहता है मुझे ट्रेड यूनियन का पार्ट नहीं रहना है, तो एम्प्लॉयर को उसे नौकरी से निकालना पड़ेगा। रीजन इज वो यूनियन सिक्योरिटी के लिए कि भैया ये इस डर से एम्प्लॉयर के पास ना चले जाएं कि स्ट्राइक करेंगे तो वो नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है, सो दैट इज योर क्लोज शॉप। क्लोज शॉप के अंदर में क्या होता है कि एम्प्लॉयर की जो फ्रीडम है हायर करने की वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। अब यूनियन शॉप क्या है, मेंटेनेंस शॉप क्या है, एजेंसी शॉप क्या है, इसको डिटेल में हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये आंसर करेंगे। स्टेटमेंट 1, closed shop is an industrial or business establishment in which union security clause in collective bargaining provide that job seeker must become a member of the union at the time of his employment and continue to do so in order to retain. Job shop agreement were widely prevalent in USA and India following the enactment of Wagner Act, National Labor Relation Act in 1935 and Trade Union Act of 1926 respectively. Chalo. The statements, tell me which statements are true, which statements are false. First answer, you must, first statement is true for sure, right? The explanation. अब आपको बताना है कि prevailing है कि नहीं है. So the answer for this is option 2 या statement 2 is not true. ये इंडिया में प्रिवेलिंग नहीं है, ठीक है, इंडिया में प्रिवेलिंग नहीं है। फर्स्ट थिंग, क्लोज शॉप एग्रीमेंट ये जो यूएसए में है ये एजेंसी शॉप है, ये इंडिया में प्रिवेलिंग नहीं है। इंडिया के ट्रेड यूनियन एक्ट में कहीं पे भी क्लोज शॉप का एज एन एग्रीमेंट के बारे में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज नॉट, 2 इज नॉट करेक्ट, इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, so this is, suppose I believe everyone would be able to answer. Arrange the following steps in sequential order for designing a structured interview. What do you mean by structured interview? Interviews लेते हैं ना, so structured interview क्या मतलब होता है? Interviews for which questions are pre-decided and standard answers are also there. तो स्ट्रक्चर्ड में क्या होगा कि अगर सीक्वेंशियल भी है, मतलब एक से ज्यादा इंटरव्यूअर भी इंटरव्यू ले रहा है, उनके जो क्वेश्चन सेट है ना वो प्री डिसाइडेड होते हैं। क्या पूछना है, कैसे पूछना है, किस सेटिंग में पूछना है, कब पूछना है, ड्यूटी से रिलेटेड कितने होंगे, बिहेवियर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन होंगे, ये सब प्री डिसाइडेड होता है। अब आपको यहाँ बताना है
कि किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू डिजाइन करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स को सीक्वेंस में लगाना है. यस, नो वन इज आंसरिंग मी इन द कमेंट सेक्शन. आई डोंट नो व्हाई. Either you are not understanding what I am teaching, either you don't bother to answer me. Yeah. So how would you create, क्या करोगे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में? सबसे पहले क्या करना चाहिए? कोई भी एक जॉब, लेकिन जैसे मेरे को एक एचआर रिक्रूटर की प्रोफाइल के लिए एक इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बनाना है, तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा? या फाइन. सो द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 2. सबसे पहले आप क्या करेंगे? जॉब को पता करेंगे ना. जॉब एनालिसिस, एनालाइजिंग द जॉब, आइडेंटिफाइंग इट्स जेडी एंड जेएस. ठीक है. उसके बाद में व्हाट यू वुड बी डूइंग, रेट. इस जेडी में, इस जेएस में क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. देन यू वुड बी डूइंग व्हाट, क्रिएटिंग द इंटरव्यू क्वेश्चंस. उसके बाद में उन क्वेश्चंस के लिए आप बेंचमार्क आंसर्स यानी स्टैंडर्ड आंसर आपके एम्प्लॉइज से या कैंडिडेट से यही आंसर्स आने चाहिए. एंड देन यू वुड बी अपॉइंटिंग अ पैनल हु वुड बी डूइंग द इंटरव्यू. ठीक है. नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. इसके बाद हमारा पढ़ाई ऐप पे क्लास है. यू हैव टू मैच, दिस इज योर ऑलरेडी PYQ, एटलीस्ट आस्क्ड 2 or 3 times in exam. Integrative framework approach, the strategic framework approach, the HRD scorecard approach, the human capital approach. TV Rao, Friedman, Ulrich and Lake, Young, Berman. So you have to match who have given what approach. Human resource development, development of the human resources, framework for them are given by different authors. Integrative framework given by, strategic framework approach given by, HRD scorecard approach given by. Chalo, answer the question. Let me see how many of you can get it correct. Yeah. Okay. Well, the answer for this is option number 1. Integrative framework given by Young and Berman. Strategic is your Ulrich and Lake. HRD scorecard is your TV Rao. Human capital is Friedman. अब ये PYQ है और ये ऑथर्स और ये अप्रोचेस हमेशा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. यू हैव टू लर्न देम. इसको डिटेल में हम अपनी HRD क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है. आज के लिए इतना ही. आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर. वी हैव आवर पढ़ाई ऐप पे क्लास ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, वेयर वी आर गोइंग टू